Hello friends, welcome to my channel. In this video, we are going to learn about the government and the constitution of India. We will see how government is formed in our country. Now let's begin. When India became independent, the leaders sat down to create a set of rules to govern the country. जब भारत आज़ाद हुआ था तो लीडर्स ने एक सेट ऑफ रूल्स बनाया था कंट्री को गवर्न करने के लिए. These set of rules were put down in a document called the Constitution of India. और ये सेट ऑफ रूल्स एक डॉक्यूमेंट में रखा गया है जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहते हैं. Presently, India has 28 states and 8 union territories. Each state has its own government called the state government. Presently, हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं. Each state has its own government. हर एक स्टेट में अपना एक गवर्नमेंट है जिसे हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, which is responsible for maintaining law and order within the state, जो कि अपने स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता है. However, there is also one overall government for the entire country known as the central government. लेकिन पूरे कंट्री के लिए एक ओवरऑल गवर्नमेंट है जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, which makes laws for the whole country and also makes sure that the laws are followed. जो कि पूरे कंट्री के लिए लॉज बनाता है और ये भी देखता है कि लॉज फॉलो हो रहे हैं कि नहीं. The union territories are directly governed by the central government. जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो डायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट से गवर्न होती हैं. You have already read about local self-governments. These are also governments that work at the local level in villages, cities and towns. तो आपने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स भी पढ़ा है जो कि वो गवर्नमेंट है जो विलेज, सिटीज़ और टाउन्स में गवर्न करते हैं. At each level, the government is divided into 3 branches. हर एक लेवल पे गवर्नमेंट 3 ब्रांचेस पे बटा है. The legislature, the executive and the judiciary. Legislature makes laws for the country. The executive puts these laws into force. The judiciary protects these laws, settles disputes with the help of these laws and brings justice. जो legislature है वो पूरे country के लिए laws बनाता है. जो एग्जीक्यूटिव है वो ये लॉस को अच्छे से फोर्स में लाता है. वो उन लॉस को ये देखता है कि लॉस को पीपल अच्छे से फॉलो कर रहे हैं कि नहीं. द जुडिशरी प्रोटेक्ट्स दीज लॉस. जो जुडिशरी है वो इन लॉस को प्रोटेक्ट करता है. सेटल्स डिस्प्यूट्स को सेटल करता है विद द हेल्प ऑफ दीज लॉस एंड ब्रिंग्स जस्टिस, और जस्टिस लाता है. मेकिंग लॉस. लेजिस्लेचर. द सेंट्रल गवर्नमेंट. द पार्लियामेंट इज द लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. पार्लियामेंट लॉ मेकिंग बॉडी है सेंट्रल गवर्नमेंट की. द पार्लियामेंट हैज़ 2 हाउसेज. पार्लियामेंट के 2 हाउस हैं, द लोकसभा एंड द राज्यसभा. The members of the Lok Sabha are directly elected by the people through elections. लोकसभा के members directly elect किए जाते हैं elections के ज़रिए. The members of the राज्य सभा are indirectly elected. और राज्यसभा के members indirectly elect किए जाते हैं. लोकसभा. As the members of the Lok Sabha are directly elected by the people, it is called the House of the People. लोकसभा के मेंबर्स डायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं पीपल के ज़रिए, तो उन्हें हम हाउस ऑफ द पीपल कहते हैं. अनदर नेम फॉर इट इज़ द लोअर हाउस. इसे हम लोअर हाउस भी कहते हैं. According to the Constitution, the maximum members in the House can be 552, out of which 530 members are to represent the states, 20 members are to represent the union territories, and 2 members are to be nominated by the president from the Anglo-Indian community. तो लोकसभा के मैक्सिमम मेंबर्स 552 होते हैं, लेकिन उनमें से 543 इलेक्ट किए जाते हैं.
Any Indian citizen who is 25 years or older is eligible to contest for election to the Lok Sabha. If elected by the people, the citizen will become a member of parliament or MP. कोई भी सिटीज़न जो कि 25 वर्ष से ज़्यादा है वो लोकसभा के इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबल है, और अगर वो पीपल के ज़रिए इलेक्ट किया जाता है तो उन्हें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है या फिर MP. द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट द स्पीकर ऑफ द लोकसभा. फिर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा के स्पीकर को इलेक्ट करते हैं, हु गाइड्स द प्रोसीडिंग्स ड्यूरिंग द सेशंस, जो कि प्रोसीडिंग्स गाइड करते हैं सेशंस के दौरान. He or she is assisted by a deputy speaker also elected by the members. और वो डेप्यूटी स्पीकर के ज़रिए असिस्ट किए जाते हैं जो कि मेंबर से ही इलेक्ट किए जाते हैं. द लोकसभा हैज़ अ 5-year term आफ्टर विच फ्रेश इलेक्शंस आर हेल्ड. तो लोकसभा के 5-year term होते हैं जिसके बाद फिर से इलेक्शन लड़े जाते हैं और फिर नए मेंबर्स आते हैं. द लोकसभा हैज़ इट्स ओन TV channel which has its headquarters in the Parliament House. The channel is called लोक सभा TV. तो लोकसभा का अपना ही एक TV चैनल है जो कि जिसके हेडक्वार्टर्स पार्लियामेंट हाउस में है, और द चैनल इज़ कॉल्ड द लोकसभा TV, और उस चैनल को लोकसभा TV कहते हैं. नाउ राज्यसभा. द राज्यसभा और द काउंसिल ऑफ स्टेट्स इज़ द अपर हाउस. जो राज्यसभा है वो स्टेट्स का काउंसिल है, उसको हम अपर हाउस कहते हैं. Unlike the Lok Sabha, its members are elected by members of the state legislative assemblies. जैसे लोकसभा के मेंबर्स इलेक्शंस के ज़रिए इलेक्ट किए जाते हैं, वैसे राज्यसभा के मेंबर्स लेजिस्लेटिव असेंबलीज से इलेक्ट किए जाते हैं, जिन्हें हम विधानसभा मेंबर्स कहते हैं. यू विल रीड अबाउट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज लेटर. तो आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के बारे में बाद में पढ़ेंगे. 12 मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. जो 12 मेंबर्स होते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ज़रिए नॉमिनेट किए जाते हैं. द नॉमिनेटेड मेंबर्स आर यूजुअली वेल नोन पर्सन्स एंड इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन्स. जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं वो बहुत ही वेल नोन पर्सन्स होते हैं और वो अपने अलग अलग फील्ड में उनका योगदान रहता है, जैसे कि आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल साइंस एंड ऑल्सो स्पोर्ट्स पर्सन्स. द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा. राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और राज्यसभा में 245 मेंबर्स होते हैं. सो आई होप आपको गवर्नमेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई है. नेक्स्ट वीडियो में हम एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी के बारे में पढ़ेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.